And my colleague Sonal Mehrotra explains who is actually responsible for the death of these innocent children. Listen in. Over a dozen young kids in India have lost their lives, all related, linked, so far allegedly, to a cough syrup. Not one particular brand, not one particular company, but combinations that exist all across. So what exactly is the story? Now, since we've been reporting about this story, it started with the case of 2 kids in Rajasthan, spread over to Madhya Pradesh, and now spreading over other states as well. The fact of the matter is that even almost a week later since these stories began, we still do not know. Who killed these kids? The answer is yet not known. Was it the adulteration of these drugs? Or was it this deadly combination of drug which is now getting banned state after state? We still do not have answers. At the moment, what is it that we know? We know that at least 5 states across India have now banned Coldriff. Now, Coldriff is a concoction of medicines said to be those which could be dangerous for kids below the age of 4. In fact, international guidelines go on to say that below the age of 6 as well. So what is it exactly that you should be doing? Well, number one, ask your pediatrician. Do not give any cough syrup to your child without consulting with your pediatrician. Number two, question authorities. Ask your doctors, ask your politicians as well, as we've been doing right here on India Today, asking why exactly has it taken them so long to respond. Remember I told you about the advisories? International advisories, whether it is the American Society of Pediatrics, CDC, WHO, everyone says that kids below the age of 6 do not need any kind of cough syrups. So why was India prescribing it? Why didn't we wake up to this earlier? And importantly, even after all these days, why have only the doctor, who was only prescribing what is already on the state list, why is the pharmacist, who was only procuring, again, the drug already on the state list, why have only people who are the lowest hanging fruits, perhaps, and just an scapegoat in a way, being put the pin on? Why haven't we seen any action being taken against any of the pharma companies, any of the drug controllers, and also importantly from our health ministers, from states and from India, in the union capital as well, to understand why did it take so long for them to respond? Even up till now, we have not seen any action against those who should be answering these very tough questions. Let's hope and let's see where the story unfolds. Until then, listen in to your pediatrician. क्या कुछ आप लोग आज कर रहे हैं? क्या कुछ निर्देश आपको मिले हैं इस कोल्ड्रिफ सिरप को लेकर? जी सर, कोल्ड ड्रिंक सिरप को लेकर के अलर्ट जारी हुए हैं कि उसकी बिक्री कहीं भी हो रहेगी तो रोक लगाई जाएगी। उसी के क्रम में हम लोगों का आज अभियान चल रहा है। कोल्ड ड्रिंक सिरप या सेरेन बायोटेक जो तमिलनाडु की कंपनी है, उसका कोई भी मतलब सिरप अगर मिलता है तो उसको सीज करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। कई सारे सिरप्स निकाले हुए हैं, कुछ कंपोनेंट्स वगैरह आपको दिख रहे हैं जो मैच कर रहे हो? जी नहीं, वो कंपोनेंट्स अभी इसमें नहीं मैच कर रहे हैं। और भी जगह हम जांच करेंगे, देखेंगे, और यहाँ पे जांच की गई है। अभी यहाँ पे इस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट हमें नहीं मिला है। ये जांच केवल प्राइवेट सीमित रहेगी या सरकारी अस्पतालों में भी जाएगी? सभी जगह पे होगी जी। मतलब कंपोनेंट्स अगर किसी भी कंपनी का हो, पर कंपोनेंट्स वो मिलते हैं तो सीज करेंगे आप उसको? जी नहीं, उस कंपनी का अगर मिलेगा तो उसको सीज करेंगे। बाकी कंपनी दूसरी हुई और 48% ऑफ ग्लाइकोल किसी और में रहा तो फिर उसकी सैंपलिंग की जाएगी। सैंपलिंग के बाद जांच में पता चलेगा कि उसमें पीजी डाइथाइलिन ग्लाइकॉल है कि नहीं है। We understand that the glycol component is going to be very crucial in these particular syrups, because if you see this particular syrup, you will see that components are written right over here, 1, 2, 3, 4. Like for example, in this syrup, it's the sulfate, it's the syrup base, flavored syrup base, and whatever the components are written in these particular syrups, and that's why the drug inspectors are ensuring that the composition of glycol must not be 48%, but it should be 0.01%, because the entire theme of this particular story is the increase of component of that particular glycol, which led to the many deaths in the state of Madhya Pradesh, Rajasthan and Tamil Nadu, and that's why action has been initiated in the state of Uttar Pradesh as well. With cameraman Gaurav Gupta, Samarth Srivastav for India Today. दरअसल डॉक्टर प्रवीण सोनी वैसे तो एक शासकीय डॉक्टर हैं, लेकिन परासिया में उनका अपना निजी क्लिनिक भी है, जहां पर बैठकर वो अपनी ड्यूटी आवर्स के बाद जो उनकी परासिया
CHS में जो ड्यूटी थी CHC में, उसके बाद वो यहाँ पे आकर के निजी क्लिनिक में भी मरीजों को देखा करते थे। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस क्लिनिक में ही, क्योंकि उन्होंने इन बच्चों का ट्रीटमेंट किया था, शुरुआती दवाइयाँ जो हैं जिसमें कोल्ड्रिफ का नाम भी है वो इसी क्लिनिक में बैठकर उन्होंने लिखा था। आज तक को ये मालूम हुआ है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी जो लंबे समय से यहाँ पे अपना क्लिनिक चला रहे थे, उस क्लिनिक के ठीक बगल में मेडिकल की दुकान संचालित होती थी। जो दवाई वो लिखते थे वो इसी मेडिकल से, जिसका नाम था न्यू अपना मेडिकल, इसी क्लिनिक में वो दवाई लिखते थे और फिर इसके बाद इस मेडिकल स्टोर से उस दवाई को लिया जाता था। अब हैरानी की बात यह है कि ये क्लिनिक किसी और का नहीं बल्कि उनकी अपनी पत्नी डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी ज्योति सोनी का है। यानी पति दवाइयाँ लिखते थे और मेडिकल जो कि ज्योति सोनी उनकी पत्नी है वहाँ से वो दवाई मिला करती थी। इसमें एक और जो बात जानकारी आई है चौंकाने वाली वो ये कि क्लिनिक और मेडिकल तो पति पत्नी का था ही, लेकिन जो दवाइयाँ आती थी, जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो डिस्ट्रीब्यूटर और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर प्रवीण सोनी के भतीजे राजेश सोनी हैं, जो कि छिंदवाड़ा में फार्मा फर्म चलाते हैं और वहीं से ये दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं छिंदवाड़ा ज़िले के अलग अलग इलाकों में। परासिया भी वही था और माना जा रहा है कि इस मेडिकल पे जो दवाइयाँ पहुँची थी वो राजेश सोनी के भतीजे प्रवीण सोनी के भतीजे राजेश सोनी के गोडाउन से इस मेडिकल स्टोर पे आती हैं, जो कि प्रवीण सोनी की पत्नी ज्योति सोनी के नाम से है। और फिर यहीं बगल में प्रवीण सोनी क्लिनिक में बैठकर उन दवाइयों को लिखा करते थे। बच्चा को ये समझ में नहीं आया कि मेरे को हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बल्कि मेरे बच्चे ने ये तक बोल दिया मेरी उसकी माँ से, अदनान ने, कि मम्मी मेरे को बचा लो। अब वो माँ ने कितना झेली होगी ये एक माँ ही जान सकती है। उसकी बातें याद आते हमको लोग को रोना आता है सर कि वो बच्चे ने क्या बोल दिया, अपने जवाब नहीं दे पाए सर। वो हमारी माँ, उसकी माँ ने अब कम क्या बोले सर। अब सामने चला जी ऐसा गोद में लेके आए हो सर, मैंने अपनी औलाद को जरा नहीं जाता सर। ये हमारी तकलीफ हम जानते हैं सर कि हमारे साथ क्या बीत रही है। अब हम क्या बताएं सर, रिजान नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बच्चे की एक ही चीज़ याद आती है सर, लेकिन हमको ये नहीं पता चला कि किडनी किस बेस में इन्फेक्शन हुई है। ये हमको पेपरबाजी से पता चला कि हमें सिरप के चलते ये हुआ है हमारे बच्चे को। सैयद के पिता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि बिल्कुल भी उम्मीद थी आपको कि एक मामूली सर्दी जुकाम बुखार के लिए आप लेके गए थे अपने बेटे को, लेकिन फिर वापस नहीं आ पाया? सर हम तो यही सोच रहे थे कि उसको नॉर्मली फीवर आया है, इस वजह से हमने इलाज करवाया। अब ऐसा क्या मालूम था कि इतनी बड़ी बीमारी हो जाएगी। उसको उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि इतनी बड़ी बीमारी हो जाएगी। कब दम तोड़ा उसे? 13 सितंबर। 13 सितंबर जी। और आपको कब मालूम हुआ कि ये जो कफ सिरप है, यही कफ सिरप जिम्मेदार है? ये आपको कब मालूम हुआ? फिर सारी जांच टीमों में जांच करी, उसके बाद हमको बताया कि कफ सिरप से दिक्कत है, ये जहर है, हानिकारक है बच्चों के लिए। Now let's listen into the political reactions that have come in on these deaths due to this deadly syrup. Mr. Pilot, how do you look at the deaths that have happened in Rajasthan allegedly because of spurious cough syrup? It's most unfortunate. Any death is unfortunate, but if it's because of spurious medicines or cough syrup, then it's something that has to be looked at very carefully and very urgently. I think the government must straight away set up an inquiry as to how it happened, whether it's a manufacturer. I want someone outside the government to inquire, because the government will try and protect its own department officials. अगर officials हैं, is it manufacturer है, is it oversight problem or a issue that's larger than that, they have to investigate. I don't think we can continue a system where people have no faith in the kinds of medicine we buy, because people, I think it's most unfortunate. They must institute an immediate inquiry into this, and guilty must be punished, whoever it may be. ये विषय राजनीति का विषय हो, अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दुर्भाग्य। तो गहलोत साहब जो अभी इस पर ज्ञान दे रहे थे, मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूं कि उनके ही शासनकाल के समय में, उनके ही गृह क्षेत्र जोधपुर में एक अस्पताल में एक दिन में 27 प्रसूताओं की गलत
जो है आईवी इन्फ्यूजन होने के कारण से मृत्यु हुई थी, उनको याद रखना चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। देश और प्रदेश की सरकार दोनों के औषधि विभाग जो है इसको लेकर के, ड्रग डिविजन इसको लेकर के कंसर्न है, वो इस पर कार्रवाई करेंगे और जांच के बाद में निश्चित रूप से जो दोषी हों उनके खिलाफ तो कठोर कार्रवाई हो, लेकिन भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसको भी सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे।